Hello students, we are going to start chapter 4 and the chapter is metal and non-metal. Chapter 4, that is metal and non-metal. Every substance on earth is made up of one or more elements. Every substance on earth is made up of one or more elements. For example, nitrogen and oxygen have one element. Nitrogen, which is represented by N, and oxygen, which is represented by O, have one element. ठीक है, कुछ ऐसे एलिमेंट, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं दैट इज मेड अप ऑफ वन एलिमेंट एंड कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं दैट आर मेड अप ऑफ वन और मोर एलिमेंट, एक से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं. फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल ऑफ वाटर. इफ यू टेक एग्जांपल ऑफ वाटर, द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर इज H2O. So in H2O there are two elements are used, hydrogen and oxygen. Okay, so here there are two elements. Now take example of glucose, that is C6H12O6. Glucose contains carbon, hydrogen and oxygen, means more than two elements. So every substance on the earth is made up of one or more elements. Oxygen and nitrogen have one element. Sugar has carbon, hydrogen and oxygen. Sugar में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं. There are 118 elements are present till now. अब तक there are 118 elements are present. In 118 elements, some are metals, some are non-metals, and some are called metalloids. So there are three types of elements are present on the earth. Out of 180, some are metals, some are non-metals, and some are metalloids. Now in this chapter we will study about chemical and chemical properties of metals and non-metals in detail. इस चैप्टर में हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर मेटलॉइड्स. Metalloids are basically those substances which have properties of metals and non-metals. यानी metalloids में metals की भी प्रॉपर्टी होती है and non-metals. So substances which have properties of metals and non-metals both are known as metalloids. ठीक है. Now physical properties of metals. Now we are going to discuss physical properties of metals. Physical properties of metals. Metals are generally strong and hard. Metals are generally strong and hard. You have seen your mother wearing
ornaments of gold, are they are not hard or shining? Let's discuss some properties are shown below. ठीक है, तो यहाँ पे हम बेसिकली देखेंगे कि मेटल्स सॉलिड एंड हार्ड होते हैं, इसके अलावा बहुत सारी प्रॉपर्टीज रखते हैं, तो उन सारी प्रॉपर्टीज को we will discuss in this video. The first physical property of metals are generally solid and hard. Metals are generally solid and hard. ठीक है, तो most of the metals are solid and hard except सोडियम एंड पोटेशियम। ऐसे दो मेटल हैं जो मेटल तो हैं बट मेटल की फर्स्ट प्रॉपर्टी नहीं रखते हैं। जनरली द मेटल्स आर सॉलिड एंड हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। ओके, सोडियम एंड पोटेशियम मेटल तो हैं बट ये सॉलिड नहीं है, मतलब हार्ड नहीं है। इनको हम वी कट थ्रू नाइफ, इनको हम नाइफ से चाकू से इसको हम काट सकते हैं। ठीक है, ये सॉफ्ट है बट मेटल है। ठीक है, दे आर स्ट्रॉन्ग एनफ टू बियर हैवी लोड्स और दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। फॉर एग्जांपल आयरन, जिंक, एल्युमिनियम, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, these are examples of metals. ठीक है, यह metals are generally solid and hard because they are strong to bear heavy loads. मतलब इनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी इनकी ज्यादा होती है, यानी हैवी लोड से ये बियर कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं मेटल्स के, जैसे आयरन Fe, Zn, zinc, aluminium, air, copper, Cu, Au is gold and Ag is silver. इसके अलावा बहुत सारे मेटल्स हैं जो प्रॉपर्टीज रखते हैं एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। नाउ द सेकेंड प्रॉपर्टी इज मेटल्स possess metallic luster. The second property is metals possess metallic luster. Most of the metals are shiny in nature. ठीक है, जैसे हम गोल्ड की बात करें, और इफ यू टॉक अबाउट सिल्वर, इसके ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, ऑर्नामेंट्स इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि ये शाइनिंग नेचर के होते हैं। ठीक है, ये चमकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स possess metallic luster. फॉर एग्जांपल Au एंड Ag। इसके अलावा अगर हम एल्युमिनियम की बात करें, एल्युमिनियम आल्सो है मेटालिक लस्टर, एल्युमिनियम में भी चमक होती है। कॉपर आल्सो है मेटालिक लस्टर। सो मेटल्स की जो सेकेंड प्रॉपर्टी है दैट इज मेटल्स पोसेसेस मेटालिक लस्टर। ओके, मेटल्स shine in their pure states. This property of metal is called metallic luster. यानी कि अपने प्योर स्टेट में मेटल्स शाइनिंग नेचर के होते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज नोन एज मेटालिक लस्टर। ठीक है, कलेक्ट अ फ्यू पीसेस ऑफ प्योर कॉपर, एल्युमिनियम एंड रब देयर सरफेस विद सैंड एंड पेपर, you will find that all of them have a shiny surface. जैसे आप एल्युमिनियम या कॉपर के कुछ पीसेस कलेक्ट करें और उसको सैंड या पेपर से रगड़ें, साफ करें। ठीक है, जैसे आप रब करते हैं सैंड से, आप देखेंगे कि जो सरफेस होगा एल्युमिनियम या कॉपर का वो शाइन करने लगेगा, चमकने लगेगा। तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज कॉल्ड मेटालिक लस्टर, और ये प्रॉपर्टी उसके प्योर स्टेट में होता है। गोल्ड है येलो लस्टर, वेयर एज कॉपर है रेडिश ब्राउन। गोल्ड का मेटालिक लस्टर कैसा होता है? येलो। गोल्ड है
येलो मेटालिक क्लस्टर वेयर कॉपर है रेड ब्राउन, कॉपर का क्या होता है रेड ब्राउन, एंड गोल्ड है येलोइश कलर, ठीक है। यानी ये येलो कलर की शाइनिंग होती है गोल्ड में और कॉपर में रेड ब्राउन कलर की शाइनिंग होती है। द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज metals are malleable. The third property is metals are malleable. Take an iron nail or thick copper wire and beat with hammer. Do this carefully so that you don't get hurt during this process. Thus it flattens. Some metals can be flattened into sheets by beating or rolling, ठीक है। तो मैलेबिलिटी क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है मैलेबिलिटी, मींस अगर मेटल्स को हम हमर से बीट करें, मेटल्स आर बीटेन विथ हैमर, ठीक है, तो क्या होगा उनमें एक्सपेंशन होगा। जैसे हम लोहे का एक टुकड़ा लें उसको थोड़े से पीटते हैं तो क्या होता है वो एक्सपेंड कर जाता है। तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज कॉल्ड मैलेबिलिटी। तो मैलेबिलिटी इज अ प्रॉपर्टी इन विच metals can be flattened into sheets by beating or rolling. This property is called malleability and such metals are known as malleable metals. So most of the metals follow this property. For example, iron. Iron is malleable in nature. Iron is malleable in nature. ठीक है, मीन्स अगर इसको हैमर से बीट करेंगे तो क्या होगा, फ्लैटेंड हो जाएगा। कॉपर आर आल्सो malleable in nature. If we talk about aluminum, gold, silver, these are also have the property of malleability. यानी इनके अंदर भी malleability की प्रॉपर्टी होती है because they are flattened while beating with hammer. ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है थर्ड प्रॉपर्टी। Now the fourth property is metals are ductile. Metals are ductile. Metals are ductile means metal can be drawn into wire. Metals को खींच करके वायर्स बनाए जाते हैं, ठीक है। Due to this property, electric wires are made up of aluminum or copper, ठीक है। Due to the ductility, wires electric wires are made up of aluminum and copper because इनको हम क्या करते हैं, खींच के लंबे वायर के रूप में इनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, metals like gold, silver, copper and aluminum are flexible. These are flexible and can be drawn into wire. Can be drawn into wire. So this property of flexibility and can be drawn into wire is known as ductility. For example, all metals except sodium and potassium, ठीक है, इन दो को छोड़ करके बाकी जो मेटल्स होते हैं वो बेसिकली डक्टाइल इन नेचर होते हैं। ओके, now the fifth property are metals are good conductor of heat and electricity. Metals are good conductor of heat and इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो
मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए गुड कंडक्टर होते हैं, मींस हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कैन इजीली पास थ्रू देम, ठीक है। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक वायर में बेसिकली हम एल्युमिनियम और कॉपर यूज करते हैं बिकॉज ऑफ देयर कंडक्टिविटी, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक वायर बनाए जाते हैं वो कंडक्टिविटी, बेटर कंडक्टिविटी के कारण मेटल्स के बनाए जाते हैं, ठीक है। जो हमारे पॉट्स बनाए जाते हैं, बर्तन खाना बनाने वाले, ठीक है, यूटेंसिल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स, यूटेंसिल्स आर मेड अप ऑफ metals due to conductivity of heat, okay. So conductivity of electricity, electric wires are made up of basically aluminum and copper, sometimes by using silver, ठीक है। ज्यादातर एल्युमिनियम और कॉपर के बनाए जाते हैं, बट कंडक्टिविटी सबसे अच्छी किसकी होती है, Ag की, सिल्वर की, बट सिल्वर इज कॉस्टली, सो इलेक्ट्रिक वायर इज बेसिकली मेड अप ऑफ एल्युमिनियम एंड कॉपर। कुकिंग यूटेंसिल्स ड्यू टू देयर गुड कंडक्टिविटी ऑफ हीट मेड अप ऑफ मेटल्स, ठीक है। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। Now move on to the next property, and the next property is metals have high density and high melting point. Metals have high density and high melting point, ठीक है। इसका रीजन क्या है, मेटल्स बेसिकली क्या होते हैं, मेटल्स आर बेसिकली सॉलिड एंड हार्ड, ड्यू टू दिस molecules are arranged in a proper order and they are very close to each other. मेटल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्रॉपर ऑर्डर में होते हैं और एक दूसरे से बहुत ही क्लोज होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होने के कारण इसके बीच स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। देयर एग्जिस्ट अ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ द, और वी कैन से एटम्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है बहुत ही स्ट्रांग होने की वजह से, ठीक है, इनकी डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है, और इसी प्रॉपर्टी की वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट व्हिच एनी मेटल कैन कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। कोई भी मेटल जिस टेम्परेचर पर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने लगे, that temperature is known as melting point. So due to the solid form and strong intermolecular forces exist between atoms of the metals, ठीक है, the density of the metals and melting point of the metals are generally very high, okay. Metals have high density but they differ widely in their density. Metals like gold, silver, mercury and iron have density as 19.3, 10.5, 13.6 and 7.8, ठीक है, respectively. But some metals like sodium, potassium, calcium, magnesium, sodium, potassium, calcium, magnesium, aluminum have low densities, ठीक है। तो कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनकी डेंसिटी बहुत हाई होती है, बट कुछ सम मेटल्स है लो डेंसिटी। फॉर एग्जांपल सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम। लिथियम इज द
लार्जेस्ट मेटल विथ 0.53 एज डेंसिटी। ठीक है, लिथियम क्या होता है, एक ऐसा मेटल है जिसकी डेंसिटी क्या होती है, सबसे कम होती है। लिथियम लाइटेस्ट डेंसिटी। ठीक है, तो सम मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, some metals have generally low density, and lithium is one of the metal which have lightest density। तो ये बात याद रखेंगे कि लिथियम एक ऐसा मेटल है जिसकी डेंसिटी सबसे कम होती है। ओके, नाउ द सेवेंथ प्रॉपर्टी इज metals are sonorous। metals are sonorous। ठीक है, metals are sonorous in the sound, produce sound while beating, produce sound while beating। metals में ऐसी प्रॉपर्टी होती है उसको बीट करने पे, पीटने पे, ठीक है, उसको जर्क देने पे उसमें से साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी bells in the temple are made up of metals। ठीक है, जो घंटियां बनाया जाती है, बेल बनाया जाता है मंदिर में, जो घंटियां लगी होती है वो मेटल्स की होती है। क्यों? क्योंकि मेटल्स के अंदर ही ये प्रॉपर्टी होती है कि वो साउंड प्रोड्यूस कर सके। ओके, यू मस्ट हैव हियर द रिंगिंग ऑफ वाइंड चाइम। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई द wind chime produce sound when metals strike each other or struck with hard materials? They produce ringing sound। जब भी मेटल को किसी हार्ड मटेरियल से स्ट्राइक किया जाता है तो वो साउंड प्रोड्यूस करता है। Thus metals are sonorous in nature। This property of metal is used in various objects like wind chimes, bells and musical instruments। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में भी मेटल्स यूज होते हैं because metals are sonorous in nature, so they produce sound। ठीक है, तो ये these are some physical properties of metals। Now move on physical properties of non-metals। Move on physical properties of non-metals। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है, तो नॉन मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो नॉन मेटल्स हैव फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट फ्रॉम मेटल्स। ठीक है, नॉन मेटल्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो मेटल से क्या होती है, डिफरेंट होती है। यानी जो जो प्रॉपर्टीज मेटल्स रखते हैं वो प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स में नहीं होती। जैसे हम अभी प्रॉपर्टी पढ़े हैं मेटल्स में, मेटल्स आर जनरली सॉलिड एंड हार्ड। So opposite of this, non-metals are generally, ठीक है, non-metals are generally soft। non-metals are generally soft। non-metals are generally soft in nature। soft in nature। The second property is they are usually dull or lusterless except for iodine and graphite। Non-metals are generally dull or lusterless, means non-metals don't have metallic luster। ये डल होते हैं, देखने में ये शाइनिंग नेचर के नहीं होते हैं। ठीक है, यानी कि ये क्या होते हैं, डल होते हैं, इनमें कोई भी मेटेलिक लस्टर नहीं होता है एक्सेप्ट आयोडीन एंड ग्रेफाइट। एक्सेप्ट आयोडीन एंड
ग्रेफाइट, ठीक है। बेसिकली ग्रेफाइट इज एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ठीक है। तो कार्बन में क्या है, नॉन मेटल है, तो इसका एलोट्रॉप्स ग्रेफाइट, ग्रेफाइट इज आल्सो शाइनिंग इन नेचर एंड आयोडीन इज आल्सो अ नॉन मेटल इज शाइनिंग इन नेचर, ठीक है। तो आयोडीन और ग्रेफाइट को छोड़ करके बाकी जितने भी नॉन मेटल होते हैं दे आर डल एंड लस्टरलेस, ओके। नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी, now the third property is metals are bad conductor of heat and electricity, ठीक है। metals are good conductor of heat and electricity, but non-metals are bad conductors of heat and electricity, ठीक है। एक्सेप्ट ग्रेफाइट को छोड़ करके बाकी जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट के बैड कंडक्टर होते हैं, ठीक है। ग्रेफाइट आप जानते होंगे जो पेंसिल पे लीड हम यूज करते हैं, दैट इज ग्रेफाइट, दैट इज नॉन मेटल बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ कार्बन, और कार्बन क्या है, नॉन मेटल है। सो वी कैन से ग्रेफाइट इज आल्सो नॉन मेटल एंड ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। उसको छोड़ करके बाकी जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो सारे हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं, ठीक है। Now the next property is non-metals are non-sonorous. Non-metals are non-sonorous. Non-metals are non-sonorous, ठीक है। मीन्स इनमें कोई भी शाइनिंग नहीं होता है, नॉन मेटल्स में कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स आर बेसिकली डोंट प्रोड्यूस साउंड व्हाइल बीटिंग। अगर हम इनको बीट करेंगे तो ये चूंकि सॉफ्ट नेचर के होते हैं तो ये टूट जाएंगे, कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे, ओके। तो दीज आर सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। नाउ देयर आर गिवन a table 4.1 at page number 58 where characteristics of metals and non-metals are given in your book. So read throughout this table and understand the physical properties of metal and non-metal better. Okay? तो इसको आप पढ़ेंगे और इसको पढ़ के आप जो प्रॉपर्टी हमने डिस्कस किया है इसको आप रिवाइज कर सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। Now carbon, a special element given at page number 58, is homework for you. Go throughout this and try to understand what are allotropes of carbon, basically graphite और diamond के बारे में यहाँ दिया हुआ है, यहाँ आप read throughout करेंगे और allotropes समझने की कोशिश करेंगे। Okay? Now move on chemical properties of non-metals. Now move on chemical properties of non-metals. Chemical properties of non-metal, ठीक है। Metals differ in their ability to react with other substances like air, वाटर, एसिड्स एंड बेसेस, ठीक है। मेटल्स जब इस एयर, वाटर या किसी एसिड या बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं, ठीक है। उन्हीं सारी प्रॉपर्टीज को हम देखेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी मीन्स किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्शन के बाद, ठीक है, इनका नेचर क्या होता है, किस तरह के सब्सटेंसेस से फॉर्म करते हैं, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। Okay, now the first chemical property of metals is
reaction with oxygen on metal, or we can say action on metal, action on metal of oxygen, एक्शन ऑन मेटल, इसका ऑक्सीजन का किसी मेटल पे